हाय एवरीवन, ਗਿਲਜ ਮਿੰਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियली यूट्यूब चैनल ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਜੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਈਵਨਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਲਜੇਬਰਾਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ, ਬੈਸਟ ਅਪਰੋਚ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕਾ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡਸ, DDF, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਧੁੰਮਾਂ ਠਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੌ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਭਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਲੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੂਕ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਡੇਟ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜਣਾ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟਸ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ PDFs ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਨਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਅਗਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫॉर ਦਾ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ UPSC ਹੈ, SSC ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਜੀਤ ਗਿੱਲ 123 ਮੇਰਾ ਕੋਡ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਫਿਲਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਔਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਅਨਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਲਜੇਬਰਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। A + B ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ A² + 2AB + B²। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ A - B ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ A² - 2AB + B², ਔਰ A² - AB ਗੱਲ ਕਰੀਏ B² = A - B × A + B। ਬਸ ਇਹ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ 100% ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਲਗਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੋਰਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 1570 × 87 + 1570 × 13 ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਔਰ ਨॉन ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਔਰ ਕੁਝ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ A × B ਹੈ,
राइट, मेरे को A इंटू बी और मेरे को A इंटू सी है, तो मैं ये समझ सकता वा कि A इत्थे और A इत्थे, अगर आप A नू कॉमन ले लीए तो अपने को B प्लस C बचेगा, तो अपना आंसर होर भी आसान हो जाएगा मेरे दोस्तों। देखो किदा करांगे, 1570 इत्थे 1570 इत्थे, तो आप 1570 कॉमन रखिए तो अपने को 87 प्लस 13 बचेगा। तो वी कैन से 1570 इंटू अगर आप 100 कर देंगे तो अपने को आंसर 1570 के नाल 00 लग जाएगी, अपना आंसर आ जाएगा। यानी मैं कह सकता वा कि तुसी 1 तो लैके 5 सैकेंड दे विच बिना पेन बिना पेपर इहो जे सम कर सकते हो, जिदा कि तुहानू सामने बोर्ड ते दिता है। ये क्वेश्चन तुहानू सेम टू सेम ये NTPC दे विच बिल्कुल पूछा गया वा, ठीक है। फिर ग्रुप डी दे RRB पेपर च भी सेम क्वेश्चन पूछा गया। जरूरी नहीं कि इस बार रिपीट होवे, लेकिन सानू पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। तो वी हैव टू टेक द कॉमन डिजिट ले सकते, कॉमन नंबर ले सकते हैं। अपने को 73 प्लस की है 27 है, तो आप इन्होंने दोनों को की करांगे कि 20 80 और ये 00 ला देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इदा आप इतने देखा कंसैप्ट 68 ने, इतने 32 है, तो आप की करांगे 25 88 और नाल दे 00 ला देंगे, अपना आंसर आ गया। देखो ये चीज़ां मैं तुहाडे नाल शेयर करनियां सी, दसो किद्दां लग रहा वा तुहानूं। शुरू च तड़का बड़का शुरू हो गया, तो बस अगे तो आप इदां ही धूड़ा ठा देनियां, ठीक है। हुण तुहानूं एक सम दिता होया है, इत्थे 3288 है इंटू 106 है माइनस 3288 इंटू 6 है, तो इहदा आंसर कमेंट बॉक्स च तुसीं दसो कितना आएगा। देखो की है कि प्रीवियसली क्वेश्चन दे विच सम दे तुहानूं इत्थे प्लस दिता सीगा, हुण माइनस है, तो आपां 3288 की करांगे कॉमन ले लांगे, अपने कोल कितना 106 माइनस 6 कर दांगे, तो वट वी कैन से 3288 दे नाल 00 ला दो, अपना आंसर आ गया। दसो किदां लग्या तरीका, अच्छा लग रहा है तो तुसीं प्लीज़ मैनूं जरूर दसो सर बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर आपां नूं इदां क्वेश्चन दिता है कि 43 28 इंटू अगर यही मल्टीप्लाई 117, राइट, अगर मल्टीप्लाई 117 माइनस अगर 43 28 दे के और इंटू तुहानूं क्या जाए कि दसो तुहाडे कोले 17 आ, तो इहदा आंसर कितना होएगा। मेरे प्यारे दोस्तों तुसीं की करना 43 28 लिखांगे, आपां नूं पता है कि 117 दे विचों माइनस 17 लैस कर देंगे, तो साडे कोले 43 28 और दे नाल की हो जाएगा 00 लग जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो जी शुरू करते हैं सिलसिला सिंपलीफिकेशन दे विच पार्ट 2। मैक्सीमम टू मैक्सीमम स्टूडेंट्स इन्हां चीज़ों तो परेशान है कि मल्टीप्लीकेशन किद्दां करना है। अज दा सैशन 10 तो 10 नहीं बल्कि 100 बार तुसीं शेयर करो, ताकि मैनूं ये लगे कि साडे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा चाहुंदे ने कि साडे टीचर साडे ते इदां मेहनत करते रहन, ठीक है। चलो जी गाइज, अगर अपने कोले मान लो कोई मल्टीप्लाई 104 इंटू अपने कोले 105 है, कितना आ 104 इंटू 105 है। हुण तुसीं देखोगे कि यह 4 ज़्यादा है 100 तो, और ये अपने को 100 तो कितना ज़्यादा है 5 है। शॉर्टकट तरीका की कहता है, शॉर्टकट तरीका ये कहता है कि इन्हां दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तुहाडे कोले कितना हो गया 20 हो गया। तुसीं अगर इनू इहदे चों लैस करोगे, ठीक है, और इनू इहदे चों लैस करोगे, देखो कंडीशन लैस तद करनी है जदों 100 तो कोई चीज़ घट होवे, ठीक है, और प्लस तुसीं उदों करोगे जदों 100 तो तुहाडे कोले ज़्यादा होवे, राइट। हुण तुसीं की करना है क्रॉस, जिद्दां मैं सिंबल लाई है इत्थे लैस नहीं करना फॉर द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर मैं लैस कहता तो आई एम पढ़न दैट, ठीक है। तो इनू तुसीं की करना है जोड़ना है, तुहाडे कोले कितना हो जाएगा 109 20 आंसर हो जाएगा। दसो किदां लग्या तरीका मेरा। अगर मैं तुहानूं दस्सां इत्थे कि 103 इंटू मेरे कोले अगर 107 मल्टीप्लाई करना है, मैनूं पता है 100 तो 3 ज़्यादा है, ये 100 तो 7 ज़्यादा है, इन्हां दोनों मल्टीप्लाई कर दांगा 7 या 21, और अगर मैं 103 7 दे विच अगर 3 जोड़ांगा तो मेरे को 110 आंसर हो जाएगा। दसो जी विद इन 2 सेकेंड्स यू पीपल कैन फाइंड द आंसर, बट यू हैव टू नीड कि तुहाडी अप्रोच की कहती है। अगर 102 आ, ये 9 ज़्यादा आ और ये 2 ज़्यादा आ, ठीक है, तो 9 दूनी 18 हो गया। जे आप इनू इहदे च जोड़ांगे और इनू इहदे जोड़ांगे, जिद्दां मर्जी कर लो, तुहाडा आंसर 111 ही आएगा। 111 18 आंसर आया। दसो दोस्तों किद्दां लग रहा है। नैक्सट अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं कि मेरे को अगर 106 इंटू 105 है, आप मल्टीप्लाई करना, दसो 100 तो कितना ज़्यादा 6 है, 100 तो कितना ज़्यादा है 5 है। इन्हां दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 6 30 हो गया। जे आप क्रॉस दे विच इहनूं जोड़ांगे तो लगभग कितना हो जाएगा 111 30 तुहाडा आंसर हो जाएगा। दसो किद्दां लग्या तरीका, ठीक है। हुण तुहानूं मैं एक सम दसांगा और कमेंट बॉक्स के अंदर तुहाडा आंसर डेफिनेटली बोलना चाहिए है कि बिल्कुल बिल्कुल सारा सर बिल्कुल सारे स्टूडेंट्स नूं शेयर करो, पहला सारे स्टूडेंट्स नूं शेयर करो और बिल्कुल इदां लिखो कि अज दी क्लास धूड़ा ठा रही है, अज पटाके पावांगे, आपां अच्छे तरीके नाल मैथ सीखांगे, कोई 30 मिनट 40 मिनट का नहीं, अज आप रज के लगभग वावा क्लास करनी है, ठीक है, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स नूं इदां ना लगे कि साडा बेस कमजोर है, क्योंकि जब तक तुहाडा बेस कमजोर रहेगा ना
ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है जी, चलो एक तुहानू मल्टीप्लाई दे रहा मैं 108 इंटू 103, फटाफट दसो इसका आंसर कितना होगा। कम ऑन गाइज क्विक, ठीक है। मैं आंसर गिन रहा वा 1, फिर मैं गिनिया 2, नेक्स्ट 3, गुड वेरी गुड, गुड इवनिंग धूड़ा ठा दो, गुड वेरी गुड, आ गया आंसर। ठीक है जी, 108 दे विच 3 जोड़े 111 और 8 × 24, तुहाडा आंसर आ गया 111 8 × 24, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ठीक है जी, हुण आपां देखो अगर मल्टीप्लाई करते हैं पार्ट नंबर 3 के अंदर, पार्ट नंबर 3 के अंदर मल्टीप्लीकेशन की गल करते हैं। अगर सानू कोई भी दिता जिदा कि 96 इंटू 94 दिता है, 100 तो घट है, ये 100 तो 4 घट है, ये 100 तो 6 घट है। करना कि सिलसिला यही रखना है कि इन्हों दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौका 24। अगर तुसी 96 दे विचों 6 लैस करोगे तद भी 90 है, जे 94 दे विचों तुसी लैस करोगे तद भी 90 है। हुण दोस्तों 100 तो घट रकम है, इस करके आपां लैस करना, तो वी कैन से दैट 90 चो भी साडा आंसर होएगा। अगर सानू इत्थे नंबर आ गया वा 92 इंटू 98, हुण आपां देखना है कि यह 100 तो 8 घट है, 2 घट है, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। जे तुसी इदां करोगे, जे तुसी इदां करोगे, तुहाडे कोले 90 बचना है, यही तुहाडा आंसर आ जाएगा। दसो किद्दां लग रहा है कंसैप्ट। जे कंसैप्ट तुहानू मेरा ठीक ठाक लग रहा है कि वाकई लग रहा है कि दमदार है, तो बस फिर शेयर नाल करते चलो, एक थंबनेल ऊपर करके ना एक लाइक जरूर करो सारे, राइट। अगर मैं तुहानू दसां कि मेरे को 97 इंटू 95 है, तो अगर मल्टीप्लीकेशन आ गया वा, तुहानू पता है कि 100 तो 3 घट है, ये 100 तो 5 घट है, इन्हां दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 5 × 15। ये तुसी देखो माइनस करना या माइनस करना, तुहाडे कोले कितना बचेगा आखिर 94, ठीक है 92 बचेगा, सॉरी फॉर दैट 92 बचेगा, 92 15 तुहाडा आंसर होएगा। ठीक है जी, चलो जी इहदा आंसर फाइंड करके दसो मैनू सारे स्टूडेंट्स। अगर 91 इंटू 97 है तो दसो दोस्तों इहदा आंसर कितना आएगा। इन्ने च तो आंसर आना चाहिए यार, इन्ना टाइम अगर खज्जल खराब तुसी करोगे फिर दसो कितना कंसैप्ट चलेगा। अप्रोच साडी बेस्ट होनी चाहिए है। PSPCL LDC पेपर और LDC पेपर अगर पास नहीं ना कर सकते, फिर तुसी किसी भी कंपीटिशन च ना बैठो, चुपचाप इदां करो, अज नैट बंद करो और एकदम फोन फान सुट दो करे और खेती च काम करना शुरू कर दो। ठीक है, यानी LDC क्लर्क के पेपर वास्ते असीं मैथ कर रहे हैं और वो भी तुहानूं फ्री च करवाया जा रहा है। इस तो वड्डी गल की हो सकती यार। ठीक है, अच्छे तरीके नाल सीखो, इंजॉय करो तुसीं। जे तुहानूं सैशन दे विच मैं अगर 10 मिनट भी कुछ दस रहा ना, तो तुहाडे पल्लियों कुछ नहीं लग्या यार, तुहानूं सिखाया जा रहा है, सीखण दी कोशिश करनी है। एवरीबडी जस्ट ट्राई टू लर्न, ठीक है, ट्राई टू लर्न यार, ये चीज़ां बहुत इंपॉर्टेंट ने। तुसीं किते कोचिंग सेंटर च जाओ, जो तुसीं कह दोगे ना सर तुहाडी बुकलेट ही दे दो, तुहानूं कह देणगे बाहर जाओ जी। ठीक है जी, किसी बुक शॉप ते चले जाओ, तुसीं ना तुहानूं एक प्रिंट नहीं करके देगा कोई भी। तो लाइक अज दा जमाना इदां है, अगर तुहानूं फ्री च कुछ मिल रहा ना, तो गाइज मैं तो यही कहांगा यार, दोनों हथ ना फैला के ग्रैब करो उस चीज़ों नूं। ठीक है, यह देखो 100 तो 9 घट है और यह 100 तो 3 घट है, 9 × 27 हो गया। जे इंज करोगे गल तो उत्थे ही है। लो जी 88 तुहाडा आंसर आ गया। दसो मैनू किद्दां लग्या कंसैप्ट। जे तुहानूं लगदा है कि वाकई दमदार है कंसैप्ट है, ठीक है, जोरदार कंसैप्ट है, तो बस फिर ताड़ियां मारदे मारदे नाल शेयर जरूर करते चलिया करो। ठीक है जी, हाँ जी, चलो जी अगला कंसैप्ट बताउने आपां। चलो जी शुरू करते हैं। नैक्सट कंसैप्ट है, अगर मान लो यही बाय द वे सानू इदां आ गया कि इत्थे 88 आ गया वा, ठीक है, तुसी जो मर्जी कर सकते हो, इत्थे 94 आ गया, यह 100 तो 12 घट है, ये 100 तो 6 घट है, तो 12 × 6 = 72 हो गया। तुसी इंज करोगे गल उत्थे पैनी है, तुहाडा आंसर कितना आ जाएगा 82 72। आई होप तुहानूं समझ आया होएगा। टाइप नंबर करते हैं आपां 4th। टाइप नंबर 4 दे विच हमेशा की होएगा जिद्दां कि 97 इंटू 104 है, राइट। देखो पैटर्न इहदा ये भी है कि तुसी की कर सकते हो, तुसी ये कर सकते हो 97 इंटू 100 करके, ठीक है जी, कितना हो जाएगा साढ़े को 9700 हो गया। फिर इनू 4 नाल मल्टीप्लाई कर दो। 4 नाल मल्टीप्लाई किद्दां करना है, आप लिखांगे 7 चौका 28, किन्ने बच गए ने अपने को 2, फिर हो गए 9 चौका 36 तो 2 किन्ने हो गए ने 38। ठीक है दोस्तों, आप लिख सकते हैं 8 8 और ये हो गया तुहाडे कोल 10 और लगभग 10,088 आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। लेकिन मैं जो पैटर्न सिखावांगा हमेशा अगर 100 तो ज़्यादा रकम होवे, 100 तो घट होवे, मैं सब तो पहला पैटर्न दस्सिया कि 100 तो रकम ज़्यादा होण या दूजा पैटर्न 100 तो घट होण। हुण मिक्स कर देने आपां
ये दसो जी 100 तो कितना घट है, ये 3 घट है, ये दोस्तों 100 तो कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। क्लीयर है। हुण तुसीं इन्हां दोनों नूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ना नहीं, एक बारी समझ लो कंसैप्ट नूं की करना है। जदों भी मेरे प्यारे दोस्तों 100 तो घट या ज़्यादा होवे तां तुसीं मल्टीप्लीकेशन हमेशा की करना है, ये ध्यान रखो कि इधरों देखो और इधरों देखो। मेरे प्यारे दोस्तों लगभग तुसीं 100 अगर 3 दे विचों 104 चों 3 लैस करोगे तो तुहाडे कोले कितना बचेगा। याद रखो जो 100 तो वड्डी रकम है, 100 तो वड्डी रकम है उसनूं आपां की करा घटावांगे और 100 तो छोटी रकम है इस कंसैप्ट च उहनूं जोड़ांगे। तो मैं कह सकदा वां कि लगभग 101 और उहदे नाल डबल सिफर ला के और जो ये मल्टीप्लाई कीते 12 ये लैस कर दो, तुहाडा आंसर आ जाएगा डबल सिफर आ लो जी 88। मैनू पता है थोड़ा जिहा समझ घट लग्या होएगा पर आपां हुण अच्छे तरीके नाल समझा दिंदे आ। चलो जी मैं इत्थे लिखिया वा तुहानूं 96 और इत्थे मैं लिखता 104। मैनू पता है कि 100 तो 4 घट है और मैनू पता है 100 तो 4 ज़्यादा है। तुसीं 4 चों के 16 मल्टीप्लाई कर लो, अगर 104 चों 4 घटाओगे या 96 दे विच 4 जोड़ोगे तो तुहानूं पता है भी 100 आना ही है। डबल सिफर नाल चेप दो और यही 16 इहदे चों लैस कर दो, तुहाडा आंसर आ जाएगा आ लो जी 96 84 आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो मोबाइल ते, तुसीं तुहाडा मोबाइल खोल के देख सकते हो कि तुहाडे मोबाइल ते पहला मल्टीप्लाई आएगा या मैं तुहानूं मल्टीप्लाई पहला दसांगा। ठीक है, आई होप तुसीं अच्छे लैवल दा सीख रहे होंगे। चलो जी अगर मान लो सानू 92 इंटू 108 दिता होया है, ठीक है जी 108 दी था ना आप मिक्स जा नंबर ले लेने 107 ले लेने, ये 8 घट है और ये वाला 7 ज़्यादा है। आप इन्हों की करांगे 7 8 56 कर देंगे और अगर आप ये चो घटावांगे या ये चो जोड़ांगे तो आप कह सकते हैं कि साढ़े को 101 डबल 0 आ लो जी 56 घटा देने आप हुण अपने को की बचेगा लगभग बचेगा कि 100 और इत्थे बचेगा 44 साडा आंसर आ जाएगा। दसो जी किद्दां लग्या कंसैप्ट, अच्छा लग्या तो बस फिर मल्टीप्लीकेशन के कंसैप्ट नूं आपां वापस तो रिपीट किया है। बहुत सारिया चीज़ां सीगियां बच्चों दीयां परेशान रहिंदे सीगे, ठीक है जी इन्हां दा दिमाग टिकाणे नहीं रहिंदा। एक पेपर च सवाल आया सी जरा देखो 140 इंटू 140 मैं लिखा वा प्लस 60 इंटू 280, ठीक है जी प्लस 60 इंटू 60। दसो जी फटाफट इहदा हल करके आंसर कितना होएगा। ठीक है जी कम ऑन गाइज कम ऑन क्विक, यानी बिल्कुल तूड़ा ठा दो सारे स्टूडेंट्स, सारे ग्रुप्स इंस्टाग्राम व्हाट्सअप टैलीग्राम जिथे भी तुसी यूज करते हो ना उदा नहीं तुसी बिल्कुल कदे कही हुई गल मननी। वैसे ना सवेरे सीधा स्टूडेंट उठेगा ना तो तद भी तुसी सब तो पहला फोन देखना है कि हाँ मैसेज की कुछ आया आ। इंस्टाग्राम ते मैनू 36 स्टूडेंट्स जोड़ देंदे ने 99% इदां दे मुंडे उदां दे मुंडे खाड़कू मुंडे फलाने मुंडे पीबी वाले मुंडे। ठीक है जी चलो ठीक है एक रौनक मेला वक्री चीज़ है, लेकिन हमेशा मन के चलो और हमेशा उस ग्रुप नूं सपोर्ट करो जो तुहाडे वास्ते तुहाडे लई जो कुछ कर रहा वा। ठीक है देखो कंसैप्ट की कहता मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई करांगे, इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई करांगे, इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई करांगे, दैन वी गॉट द आंसर। बट एक चीज़ याद रखो कि ए अगर मैं कहां कि ए इंटू ए मनीए ठीक है तो डेफिनेटली ए साडे कोल डिफरेंट रकम है बी इंटू बी है। एक कंसैप्ट साडे कोले आ गया वा कि a इंटू ए का मतलब है कि 2 इंटू ए इंटू बी। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों अगर a प्लस बी का होल स्केयर करांगे तो a हो जाएगा a स्केयर प्लस दे विच हो जाएगा 2ab और प्लस हो जाएगा b स्केयर। ठीक है जी अगर ये कंसैप्ट इदा बन रहा है तो कंसैप्ट बनया कितों इस तो बनया। हुण तुसीं सोचोगे कि सर इत्थे 2ab क्यों नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर साडे कोल a 140 है तो इत्थे सानू a और 2 का मल्टीप्लाई करके और b की रकम बिल्कुल सेम टू सेम देती है जो b साडे कोल 60 मौजूद है। ठीक है जी जदों भी इदां दा सवाल आवे तो तुसीं की करना है फर्स्ट रकम लेनी है और सैकेंड रकम लेनी है और उन्होंने इंज कर देना है कि लगभग थोड़े कोले कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 300 का अगर होल स्केयर करोगे तो थोड़े कोले कितना हो जाएगा 3 3 9 आ लो जी थोड़े कोले कितनी है 2 ते 2 4 0 लग जानी है, यही तुहाडा आंसर आ जाएगा। दसो जी मैनू किदां लग्या तुहानू कंसैप्ट ये राइट। इत्थे सॉरी फॉर दैट यार इत्थे 300 नहीं 200 है। ठीक है जी 200 बनेगा तो आ लो जी आप चक के की कर देने हैं हाँ जी 2 दूनी 4 डबल 0 लगनी सी इहदे नाल 2 0 होर ला देने आ लो जी तुहाडा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी इदां दा ही एक सवाल लिखते हैं आप जरा फिर फाइंड आउट करते हैं आप आंसर। मैं तुहानू पेपर च पूछांगा कि 5 इंटू 5 प्लस दे विच अगर तुहानू पूछा जाए 10 इंटू 6 और इत्थे पूछा जाए कि 6 इंटू 6 दसो जी इहदा आंसर कितना है। सौखा जिहा सवाल ले लैने ज़्यादा औखा नहीं लेंदे आपां। तो मेरे प्यारे दोस्तों तुसीं ये नहीं करना कि इत्थे 25 हो गया वा इत्थे 60 हो गया वा
ਇੱਥੇ 36 ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 85 + 36 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 1 ਔਰ 121 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ a² ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2ab + b² ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ a + b ਦੇ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਮੀਨ ਕਿ ਇੱਥੇ a 5 ਹੈ ਔਰ b ਇੱਥੇ 6 ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 11 ਨਾਲ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦੋ। ਆ ਲਓ ਜੀ 121 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ आंसर आ जाएगा। क्विक ऑन फायर, क्विक बस जल्दी जल्दी काम करना है आप। ठीक है जी, अगला सवाल तुहानू मैं दे रहा वा, फटाफट तुसी आंसर फाइंड करना है इसका। देखते हैं किन्ने स्टूडेंट्स करते हैं, गबरू बन के किन्ने बच्चे करते हैं। 280 280 इत्थे मैं माइनस लिखांगा, मैं लिखा वा 556। याद रखो 556 इंटू आई हैव टू राइट हेयर 60 प्लस दे विच मैं इत्थे लिखांगा 60 इंटू 60। दसो जी गाइज कितना आंसर आएगा। क्विक बस जल्दी फटाफट आंसर फाइंड करो इहदा। ठीक है जी, हुण देखो तुहाडे कोल a² माइनस दे विच 2ab एंड प्लस दे विच तुहाडे कोल b² हो गया। अगर ये चीज़ है तो तुहानू पता है कित्थों आया, a - b दे होल स्क्वायर तो आया। a दा मतलब हो गया 280 अते b दा मतलब हो गया 60 और इहदा होल स्क्वायर आ जाएगा। दोनों चों लैस करांगे तो अपने कोले कितना बचेगा 220। 220 दा होल स्क्वायर करांगे तो 2 कितना हुंदा है 22 दा स्क्वायर हुंदा है कितना लगभग 484 राइट। और इहदे नाल डबल सिफर लग जाएगी तो इहदा आंसर आ जाएगा 48400। आई होप थोनू समझ आया होएगा कि कंसैप्ट बहुत ईजी और कितने कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आउंदे ने। चलो जी एक सवाल होर करते हैं, फटाफट मेरे माइंड च आ गया। 360 इंटू 360 ठीक है, इत्थे आ जाएगा तुहानू 2 इंटू 360 इंटू अगर 140 दे के प्लस दे विच 140 या 22 का भी 140 के थां ते 140 के थां ते अगर तुहानू 19600 दिता जाए तो दसो इसदा आंसर कितना है। हमेशा तुसीं यही कंसैप्ट ध्यान रखना है कि फॉर्मूले नू मॉडिफाई करके किवें भी दिता जा सकता है। तो याद रखना है कि इत्थे ए हो गया, इत्थे तुहाडे कोले माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बी हो जाएगा 19600 सॉरी फॉर दैट 396 और 140 और इहदा होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों नू लैस करांगे पहला तो आपां तो अपने कोले हो जाएगा 120 और 120 का अगर आप होल स्क्वायर करांगे तो 2 दूनी 4 144 दे नाल 00 ला देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। यू पीपल कैन सॉल्व इट। ठीक है, तुसीं इहनूं प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो भी तुहानूं जस्टिफिकेशन मिलेगा कि किदां दा क्वेश्चन हुंदा है, किदां दा किवें हुंदा है। ठीक है, चलो जी एक सवाल होर लिखते हैं। यह मंडी बोर्ड के पेपर दे विच आया होया है, बहुत ही सिंपल जा सम है, लेकिन देखते हैं कि क्विक किन्ने जल्दी फाइंड करते हो। 203 इंटू 203 माइनस 197 इंटू 197 दसो जी दा आंसर कितना होगा। क्विकली गाइज सब तो पहला सैशन शुरू करने तो पहला तुहानू मैं दस दित्ते थे कि किदां दे फॉर्मूलेज हुंदे। हाँ जी गाइज की आंसर आएगा। चलो जी दोनों स्टूडेंट्स ने मल्टीप्लाई करना शुरू करता होएगा। किदां करता होएगा कि 206 और 9 करता होएगा, फिर ये जब च पै गए होंगे कि हाँ जी हुण असीं मल्टीप्लाई किदां करिए। मेरे दोस्तों एक्सप्लेनेशन तो करना ही नहीं है, आपां लंबा क्वेश्चन नूं नहीं सॉल्व करना यार। क्वेश्चन का आंसर आ चुके हैं, मेरे को आ चुके हैं, मैनू पता है कि 203 400 और 6 कितना 6 चौका 2400 आंसर आ गया। आ लो जी किदां आया, लेट इट चेक। मैनू पता है कि अगर मैं इनू इदां लिखदा कि 203 का होल स्क्वायर कर दिए माइनस 197 का अगर आप होल स्क्वायर कर दिए, वी नो कि साडे कोल a² माइनस b² है, तो इसका मतलब है कि a प्लस b हो जाएगा और इंटू साडे कोल a माइनस b हो जाएगा। अगर प्लस करांगे तो 203 दे विच 197 जोड़ांगे आप। सब तो पहला 203 प्लस 197 एंड सैकेंड थिंग इज दैट कि मल्टीप्लाई करांगे आप 203 माइनस करांगे आप 197। तो अगर आप इन्हों जोड़ांगे तो साढ़े को कितना हो जाएगा 400 और इन्हों लैस करांगे 6 तो 6 चौका 2400 साडा आंसर आ जाएगा। दसो जी किदां लग्या तुहानूं, ये जबरदस्त है ना। तो बस फिर इदा ही कंसैप्ट समझना है तुसीं सारे ने। ठीक है जी, एक सवाल है 156 इंटू 156 माइनस अगर तुहानूं दिता है कि 144 इंटू 144 दसो जी दा आंसर कितना होएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों तुहानूं पता है कि 156 इत्थे सानी होल स्क्वायर बनया वा। ठीक है, इत्थे साडे कोले सैकेंड है, तो मैं कह सकदा मैं कि अगर a² हो गया वा तो a साडे कोले b² हो गया। इन्हां दा फार्मूला बन जाता है कि a प्लस b हो गया वा और दूजा साडे कोले a माइनस b है। एक बार अगर आप इन्हां दोनों नंबरों नूं जोड़
जोड़ांगे तो लगभग साडे कोले 300 बनेगा। ठीक है जी, 300 इंटू दोनों को माइनस करांगे तो साडे कोले 12 आएगा। तो लो जी 12 ते 3600 साडा आंसर आ गया। दसो जी किदां लग रहा तुहानूं कंसैप्ट पूरा अच्छा लग रहा है? ठीक है, तो बस शेयर कर दो। जदों भी तुहानूं नोट डाउन कर लो, पेपर च तुहानूं इदां ही पूछा जाएगा, चाहे तुसीं रेलवे एग्जाम क्यों ना देण वग जाओ मेरे दोस्तों, पेपर च इदां दे सम बहुत बार पूछे जाते हैं। हाँ जी, टाइप नंबर 5th चलते हैं आपां। टाइप नंबर 5th, टाइप नंबर 5th के अंदर बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही दमदार क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन लिखना है मैं कि 4, चलो आप आसान लिख दें, वंस मैं इन्हों आसान कर देना है। मैं लिखा कि 3 इंटू 3 आई एम राइटिंग हेयर एंड एवरीवन तुसीं अच्छे तरीके ना प्लीज़ इन्हों देखना है। ठीक है, और मैं इत्थे लिखांगा कि 2 इंटू 2। ठीक है जी, अपोन दे विच अगर मैं लिखा कि 3 इंटू 3, ठीक है जी, 3 इंटू 3 प्लस अगर मैं लिखा कि 3 इंटू 2 और फिर मैं कहां कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नो प्लस 2 इंटू 2। लो जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये कंसैप्ट तुहाडे कोले लिखिया गया वा, इहदा आंसर तुसीं दसना है भी कितना हो सकता और किवें हो सकता है। लो जी देखो, बिना पेन बिना पेपर मैं तुहानूं करन दा तरीका दसांगा। यकीन मन्नियो कि तुसीं किसी भी एग्जाम च बैठो, चाहे तुसीं रेलवे पेपर च बैठो, ग्रुप डी च बैठो, ग्रुप सी च बैठो, कल नूं ग्रुप ए दा एग्जाम भी दोगे, PPSC एग्जाम च बैठो, कैलकुलेशन दे विच तुहाडी महारत बहुत तगड़ी होने वाली है। चलो जी, स्टूडेंट की करेगा, सब तो पहला लिखेगा स्टूडेंट को 21 मादा या 27 लिखेगा, फिर यानी इत्थे 8 लिखेगा, फिर स्टूडेंट ने की करना है 3 3 9 करेगा, फिर करेगा 6 करेगा, फिर करेगा 4 करेगा। ठीक है जी, स्टूडेंट को की ऑप्शन बचेगा, ऊपर 19 बच गया, थले 10 ते 19 बच गया। आ लो जी स्टूडेंट ने कहना जी मेरा तो एक आंसर आ गया, धड़ाले नाल मैं तो आंसर लिखता है। ठीक है जी, हुण यह आंसर किद्दां आया, तुसीं किवें कर सकते हो, क्विक वैरी क्विक किद्दां कर सकते हो। देखो जी मेरे प्यारे दोस्तों, एक रूल हुंदा है, उस रूल ते आपां काम करांगे। पहला मैं तुहानूं रूल समझाउणा वा, फिर तुसीं खुद कहोगे कि सर बिल्कुल बहुत अच्छा है। आई हैव टू राइट हियर, अगर मैं लिखा कि ए दी क्यूब माइनस बी दी क्यूब, ठीक है जी, ए दी क्यूब माइनस बी दी क्यूब, इहदा फॉर्मूला हुंदा है ए माइनस बी। नोट कर सकते हो कि ए स्केयर माइनस ए बी प्लस साडे कोले हुंदा है बी स्केयर। करैक्ट, ये फॉर्मूला हुंदा है। अगर साडे कोले माइनस है तो प्लस 12 आ चुके हैं, माइनस 12 आ चुके हैं। अगर यही फॉर्मूला साडे कोले ए दी क्यूब प्लस बी दी क्यूब हुंदा तो तद वी हैव टू राइट हियर ए प्लस बी की लिखते आपां ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर लिखते। इसका मतलब यह है कि ए दी क्यूब प्लस बी दी क्यूब के इक्वल की होएगा ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर ही इक्वल होएगा। दसो जी किदां लग्या तुहानूं। हुण देखो मेरे प्यारे दोस्तों, तुहाडे कोले की है इस कंसैप्ट दे विच, इत्थे अपने कोले की है ए दी क्यूब है, ठीक है जी, इत्थे अपने कोले बी दी क्यूब है, इत्थे अपने कोले ए स्केयर है, प्लस इत्थे अपने कोले ए बी है और इत्थे अपने कोले बी स्केयर है, जो बिल्कुल पहला फॉर्मूला एकदम फिट है। फिट है तो तुहानूं पता है कि ए बी वाला बन रहा है और ए बी बन रहा है, तो की रह गया अपने कोले ए माइनस बी रह गया। ए अपने कोले 3 सी तो बी साडे कोले 2 सी। आलो जी एक आंसर आ गया, चक्को जी। इन्ना ही काम करना है तुसीं। हुण देखो तुहानूं मैं दसदा PPSC दे विच ये सवाल आया सी कि 4.54, फिर तुहानूं दिता गया 4.54, फिर दिता गया 4.54। इत्थे सिंबल तुहानूं दिता गया माइनस दा, लिखा गया 2.14, 2.14 और 2.14 अपोन दे विच दिता गया वा। लो जी 4.54 इंटू 4.54, फिर सिंबल प्लस का ला के 4.54 दे के और इंटू किया गया 2.14 और प्लस दे विच लिखा गया कि 2.14 और 2.14। क्लीयर है जी। हुण दसो कि मेरे प्यारे दोस्तों तुसी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तुहाडे चों इंटैलीजेंट स्टूडेंट हजे भी पंगे लैणगे, वो इन्हां नूं एज्यूम करनगे, इन्हां नूं यानी मैं कह सकदा डेसीमल वैल्यू नूं खत्म करनगे। लेकिन तुसी समझना है कि हर वक्त यानी मैं कह सकदा कि मैथ नाल धक्का नहीं करना, मैथ नूं पैटर्न समझना है। अगर अपने कोले ऊपर बन चुके हैं कि ए दी क्यूब, नीचे बन इधर बन गया बी दी क्यूब, इत्थे बन गया वा ए स्केयर प्लस इत्थे बन गया बी स्केयर और इत्थे बन गया वा इदा करके। क्लीयर है जी। तुहानूं पता है कि इहदा फॉर्मूला की हुंदा है, फॉर्मूला हुंदा है ए माइनस बी होएगा, ए होएगा मेरे प्यारे दोस्तों ए स्केयर प्लस होएगा ए बी और प्लस होएगा बी स्केयर और अपॉन दे विच गिवन की है, गिवन आपां नूं ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर है।
ये दोनों कट गए, साडे कोले की बचिया। हमेशा जदों भी इदां दा फार्मूला फिट बने तो तुसी पहली रकम अते दूजी रकम चुको, दोनों नूं माइनस कर दो, तुहाडा आंसर आ गया। 4.54 चो 2.14 कट कीता तो 2 तुहाडे और 2.40 तुहाडा आंसर आ गया। दसो जी बिना पेन बिना पेपर सवाल हो सकते हैं? यही पॉसीबल हो चुके हैं, यही पॉसीबिलिटी है। लो जी सवाल पेपर च तुहानूं इदां आएगा 666 इंटू 666, ठीक है जी, प्लस तुहाडे कोले आ गया 333 इंटू 333। लो जी मेरे प्यारे दोस्तों सवाल समझना आ, ठीक है, तुसी खुद दसोगे कि आंसर कितना होएगा। 666 इंटू 666 माइनस दे के तुहानूं पूछा जाएगा 333 इंटू 666 और प्लस तुहानूं पूछा जाएगा 333 इंटू 333। दसो जी इहदा आंसर कितना होएगा। तो मैनूं पता आ कि इत्थे सिंबल प्लस दा आ तो आपां प्लस कर देना है, अगर ऊपर माइनस दा आ तो माइनस कर देंगे, बस यही चीज़ है। इहदा आंसर आलो जी 999 आ चुके हैं। हुण तो अनजान बच्चा की करेगा, मल्टीप्लाई थोड़ी कर लोगे, दैन तुहानूं कोई भी इदां दी परमिशन नहीं दी जाएगी कि यू हैव टू टेक विद योर कैलकुलेटर या एनी अदर, ठीक है, इलैक्ट्रिक जो भी इलैक्ट्रॉनिक्स ऑब्जेक्ट होंदे ने तुहानूं नहीं परमिशन होएगी। लेकिन तुसी अगर प्रोसीजर ना फाइंड आउट करोगे तो दैन तुसी नहीं कर सकते हो। इहो जे सम हमेशा परेशान करते हैं, पहला बैंकिंग एग्जाम च बहुत ज़्यादा आउंदे सीगे, ठीक है जी। एक्सपैक्ट करते हैं एग्जाम का कोई मूँह मत्था नहीं होंदा, किसी में भी सवाल आ सकते हैं। चलो जी इदा अगर हुण आपां करदे हां टाइप नंबर 6 दे विच, ठीक है जी, टाइप नंबर 6 दे विच आपां क्वेश्चन करांगे। एक सम दिता हुंदा है, हमेशा एक मैं मॉडिफिकेशन करन जा रहा है, जरा गौर ते रखनी है ना कंसैप्ट ते गौर ये रखनी है कि अगर सानू a प्लस b दा इत्थे होल स्केयर दिता गया माइनस अगर सानू a माइनस b दा होल स्केयर दिता है, दसो जी इन्हां दी वैल्यू कितनी है। राइट कंसैप्ट की कहना मेरा, कंसैप्ट ये कहता है कि a स्केयर प्लस साडे कोले हो गया 2ab प्लस साडे कोले हो गया बी स्केयर माइनस आपां की करांगे ब्रैकेट ओपन नहीं करांगे एक बारी, ठीक है, वी हैव टू टेक इन दिस ब्रैकेट तो आपां लिखांगे तो ए स्केयर माइनस अपने कोले हो जाएगा 2ab और प्लस साडे कोले हो जाएगा b, ब्रैकेट आप ओपन करांगे तो ए स्केयर प्लस की हो जाएगा 2ab और प्लस हो जाएगा b, सिंबल इत्थे चेंज हो जाएगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस नूं माइनस नाल मल्टीप्लाई किया तो की हो जाएगा प्लस और माइनस नूं जदों आपां एस प्लस नाल करांगे तो हो जाएगा माइनस। याद रखियो इन्हां नूं, ठीक है जी। ये देखो ए तो प्लस दे ने और ए भी प्लस दे है, ए वाले अपने कोले प्लस है अते माइनस कैंसल हो गया, की हो जाएगा साडे कोले प्लस अते माइनस कैंसल हो जाएगा और ए वाली वैल्यू साडे कोले 2 2 4 ने, ठीक है जी। तुसीं ए भी याद रखोगे कि प्लस और माइनस कैंसल हो गया, ए वाली प्लस ने अते ए वाले प्लस ने, तो वी कैन से दैट कि 2 और 2 कितना हो जाएगा साडे कोले 4ab साडा आंसर आ जाएगा। तो बस यही याद रखना है, इत्थों ट्रिक्स बनदी हैं, ट्रिक्स कितों भी नहीं बनदियां। जिद्दां कि सवाल एक दिता तुहानूं पेपर दे विच 964 प्लस दे विच दिता गया 964 736 और इहदा इदां करके पेपर वाला होल स्केयर दे के और फिर तुहानूं माइनस दे देगा कि 9.64 प्लस दे विच 7.36, ठीक है जी। हुण देखो प्रीवियसली सिंबल तुहानूं प्लस सीगा और इत्थे तुहानूं सिंबल माइनस दिता जाएगा और इहदा भी होल स्केयर है, ठीक है जी, और होल स्केयर दे के और हुण तुहानूं पूछा जा रहा है कि 9.64 इंटू की 7.36। दसो जी मेरे प्यारे दोस्तों का आंसर कितना है। क्विक यानी मैं तुहानूं इदां दा कंसैप्ट दसांगा कि तुसीं जिंदगी भर नहीं भुल्लोगे, तुहाडे आउण वाले बच्चों नूं भी ईवन कि तुहाडे नैबर च पढ़दे ने उन्हां नूं भी तरीके दसोगे कि की आंसर हो सकते हैं। हाँ जी कम ऑन गाइज क्विक दसो जी की आंसर होएगा। हुण स्टूडेंट्स की करेगा कि इदां 7 इनू 10 कर लो जी, इनू 7 मनो जी, ठीक है, 17 करो, इनू इदां करो, इनू उदां करो, इदां परेशान होणगे। चलो लेट इट डू जिद्दां तुहानूं चंगा लगदा है, ठीक है जी। मैं पानी पी लवां फिर आपां सिलसिला जारी रखते हैं। हाँ जी गाइज कुछ समझ आया? चलो जी मैं समझाना आ, ठीक है जी। ऊपर तुहानूं जस्ट ही समझाया मैं कि जदों भी साडे कोले a प्लस b दा की बन गया वा होल स्केयर माइनस अगर a माइनस b दा होल स्केयर और अपॉन दे विच अपने कोले a इंटू b बन रहा है तो यू नो कि इहदा आंसर 4ab बराबर हुंदा है। थले ab नाल ab कैंसल हो जाएगा। हमेशा अखा मीच के तुसी 4 टिक कर दो यार, कभी भी कोई गलत नहीं होएगा, बस तुहाडा कंसैप्ट हो गया, ठीक है जी। किद्दां लग्या तुहानूं दसो, यानी तुसी सोचोगे सर कि तुसी बिना कैलकुलेशन दे इत्थे किवें करता, यही कंसैप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। चलो जी एक सिलसिला शुरू करते हैं होर सवाल का। यही तुहानूं इदां ही मैं करना है कि तुहानूं किसी भी ना पंजाबियां मूवी हुंदियां सी, पंजाबी मूवीज़ हुंदियां सी, जिवें कि आपां कह सकते हैं कि पुराने जमाने दे विच उन्होंने थोड़ा जिहा याद करके फील करो, ठीक है, कितना इंजॉय हुंदा सीगा। तो बस इदां ही सवाल दे विच इंजॉय करो कि बस साडा इदां ही एक पेपर च कंसैप्ट आ रहा है। चलो जी
ਆਪਾਂ एक कंसैप्ट सवाल लिखते हैं जरा। मैं इत्थे लिखा कि 666, ठीक है जी, 666 प्लस मैं इत्थे लिखा कि 333 और इनका मैं करता होल स्केयर, ठीक है जनाब, 666 और मैं इन्हों इदा करके, चलो इदा भी लिख सकते हैं बाई द वे, और तुसी डिफरेंट तरीके नाल भी लिख सकते हो, जिदा कि अगर आप थोड़ा जिहा चेंज कर दें कंसैप्ट नूं कि स्टूडेंट्स नूं सारिਆਂ नूं समझण लई ईजी रहेगा। मैं इत्थे 4 लिखिਆ, इत्थे 3 लिखिਆ, इत्थे 3 लिखिਆ, ठीक है जी। आ लो जी, इसका मैं होल स्केयर कर दांगा और इत्थे मैं सिंबल अगर माइनस का यूज करा, बाई द वे इत्थे मैं लिखांगा 666 माइनस लिखांगा 334 होल स्केयर किया जाए तो दसो इहदा आंसर कितना आएगा। सब तो पहला तो इहदा आंसर कितना आएगा, इहदा आंसर आएगा 4 इंटू 666 इंटू की आ जाएगा साढ़े को 334। क्लीयर है। लेकिन पेपर च तुहानूं हमेशा की पूछा जाएगा, पेपर च यही पूछा जाएगा कि इत्थे 666 दे के इत्थे तुहानूं 334 दे के पूछा जाएगा आंसर दसो। यू नो गाइज कि ऊपर वाले की वैल्यू 4 AB की इक्वल होएगी और 4 AB का मतलब इत्थे की है कि 4 इंटू 666 इंटू कितना आएगा 334 डिवाइड बाई तुहाडे कोल 666 इंटू 334 है, इनू कैंसल कर दो, तुहाडा आंसर कितना आएगा 4 बजेगा पिछे, जो बिल्कुल एकदम सही और एकदम क्लीयर आंसर होएगा। ठीक है जी, आई होप तुहानूं समझ आया होएगा। चलो एक एग्जाम्पल होर कर लैने आपां, जिवें कि मैं इत्थे लिखिया कि 7.1 7.9 लिखिया और प्लस मैं लिखांगा इत्थे कि 2.1 लिखिया, इन्हां दोनों का होल स्केयर किया और अगर असीं यही कंसैप्ट नूं अगर प्लस करके लिख रहे हैं, बाई द वे अगर प्लस करके लिख रहे हैं 7.9, ठीक है जी, माइनस इत्थे 2.1 का होल स्केयर करके, और अगर यही कंसैप्ट तुहानूं इदां दिता जाए कि 7.9 का होल स्केयर एंड प्लस तुहानूं दिता जाए कि 2.1 का होल स्केयर, दसो जी दा आंसर कितना होएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा लिए याद रखना है, हमेशा लिए याद रखना है कि 2 फॉर्मूलेस होंदे ने। किहड़े किहड़े फॉर्मूले जरा देखो, a प्लस बी का होल स्केयर है और प्लस साडे कोल a माइनस बी का होल स्केयर है। ठीक है, वी हैव ए स्केयर एंड प्लस बी स्केयर, दैन वी हैव टू फाइंड आउट। अगर आप इन्हू सॉल्व आउट करांगे, देखो जी इन्हू आप सॉल्व करांगे, पहला तो इनू आप हल करांगे तो अपने को ए स्केयर प्लस 2ab प्लस साडे कोल की हो जाएगा बी स्केयर, ब्रैकेट ऑफ करांगे, प्लस का सिंबल यूज करांगे, इनू आप सॉल्व करांगे तो अपने को ए स्केयर आ जाएगा माइनस 2ab आ जाएगा प्लस बी स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी, और अपॉन अपने को ए स्केयर प्लस बी स्केयर है। हुण देखो ए माइनस है और ए प्लस है, जो ब्रैकेट ओपन करांगे तो खत्म हो जाएगा, तो मतलब ए इत्थे बचे और ए इत्थे बचा, तो वी कैन से दैट कि 2a स्केयर, ठीक है जी, बी इत्थे बचा और बी इत्थे बचा, तो वी कैन से दैट 2b स्केयर और अपॉन अपने को कितना आ ए स्केयर प्लस बी स्केयर है। ठीक है जी, हुण आप कॉमन लवांगे गाइस, तो कॉमन लवांगे तो अपने को 2 कॉमन आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर और ए स्केयर प्लस बी स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो हमेशा इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। नो नीड यार, कोई जरूरत नहीं है कि पूरा क्वेश्चन तुसीं सॉल्व करना है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करना किसी भी स्टूडेंट ने अगर पेपर च इदां दा सवाल तुहानूं पूछा जाता है। ठीक है जी, चलो ये हमेशा लिए याद रखना है, बहुत ही छोटिया छोटिया चीज़ां ने। एक सवाल लिखते हैं कि मैं जिवें लिखा है कि 777 प्लस अगर तुहानूं पूछा जाता है इत्थे 3 2 ਅਤੇ 223 और इहदा अगर होल स्केयर करके प्लस पूछा जाता है कि 777 चाहे बाई द वे डेसीमल भी आवे, तुसीं तद भी ही मेरे पैटर्न फॉलो कर लेना है हमेशा ਲਈ। अगर तुसीं चाहुंदे हो कि तुहानूं पेपर दे विच आरामदायक इदां दा कंसैप्ट मिले और तुसीं पेपर च हमेशा कुछ अच्छा करके आओ, बस कुछ नहीं करना। इहदा आंसर कितना हो गया, आ लो जी 2 आंसर हो गया। ठीक है जी, अगर यही कंसैप्ट इत्थे माइनस सिंबल आएगा, अगर इत्थे माइनस आएगा तो तद हमेशा लिए याद रखो कि ये तुहानूं स्केयर ना दे के वो मल्टीप्लाई देगा, मल्टीप्लाई देता तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा 4 आएगा। दसो जी कितना लग्या कंसैप्ट, एक बारी होर शेयर करो जे तुसीं चाहुंदे तुहाडे तक मैं ट्रिक्स होर तुहाडे नूं जबरदस्त खतरनाक वालियां ट्रिक्स तुहाडे नाल मैं शेयर करा, तो प्लीज़ एक बारी शेयर सारे करो। ठीक है जी, भी सर बिल्कुल सैटिस्फाई है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है जी, हाँ जी, फिर आप क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करांगे। हुण देखो तुसीं ये तुहानूं सवाल दिता एक, ये सवाल है ये तुहाडे तो मैं करवाउणा है, और ये सवाल है कि SSC CGL प्रीलियम्स यानी 1999 1999 दे विच फस्ट सिटिंग च क्वेश्चन पूछा गया है, और ये सवाल कितों बाहरों नहीं बनया है, ये सवाल इन्हां दे विचों ही बनया है। किद्दां बनया, इहदा आंसर तुहाडे सामने है कि 1 है 4 है 5 है 6 है, बिना पेन बिना पेपर करावांगा, इदां दे सवाल तुहानूं करावांगा, लेकिन बिफोर दैट कि सानूं ये चीज़ां सारियां क्लीयर करनियां पैण। इहदा आंसर तुसीं देना सारिਆਂ ने कमेंट बॉक्स कितना आंसर आएगा। ठीक है, सैशन ऑफ होने तो बाद देना है। चलो जी एक क्वेश्चन होर करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिद्दां कि पेपर 'च बहुत बार पूछा गया है 2.3 की पावर कितनी होगी, 3 होगी,
प्लस सानू दिता गया 0.027 एंड अपॉन गिवन हेयर 2.3 की पावर कितनी है साढ़े को 2 है और सानू इत्थे माइनस दे के क्या जाता है कि 0.69 है एंड प्लस साढ़े को 0.09 है। दसो जी इहदा आंसर कितना है। चलो जी मैं तो गाइज फाइंड कर लिया, हुण तुसी दसो जी कितना आंसर है। देखो थोड़ा जिहा क्वेश्चन किते ना किते रिलेट लगता, तुहानूं परेशान भी करेगा, क्यों करेगा इस बारे समझना है। देखो जी सवाल ये है कि अगर इत्थे तुहाडे कोले क्यूब है तो डेफिनेटली आ भी किसी नंबर की क्यूब है, अगर ए क्यूब है तो क्यूब की दी है, ए क्यूब है इस नंबर की है, ठीक है जी। और इस दी क्यूब इत्थे सॉल्व करके तुहानूं गिवन है, इत्थे गिवन है बट उत्थे होनी वो चाहिए सी। हुण देखो इत्थे ए स्केयर बन गया तो डेफिनेटली इत्थे की बनेगा बी स्केयर हैगा और ए वाला साडे कोले की है ए इंटू बी है। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों ये सवाल बन गया वा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन तुसी कह सकते हो कि ए स्केयर ऊपर प्लस है यस प्लस है तो मतलब ए स्केयर ए बी अते बी स्केयर बन गया वा। तुहानूं पता है कि दा फार्मूला हुंदा है कि ए प्लस बी आएगा और ए हुंदा है ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर आएगा और अपॉन साडे कोले ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर है, ये कैंसल कर दो अते ए प्लस बी जोड़ दो, तुहाडा आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया सी कि अगर ऊपर प्लस गिवन है तो डेफिनेटली ऐड होएगा। हुण तुहानूं पता है कि 2.3 के अंदर 0.3 जो ऐड कर देंगे तो 2.6 क्विक आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स परेशान हो गए कि सर इत्थे तुसीं तां डिफरेंट 2.3 लिखता, इत्थे तुसीं 0.027 लिखता, तो 0.027 का मतलब ये हो गया कि 0.3 तो 33 हो गया। थोड़े को 1 2 3 3 डिजिट्स तो पहला आएगा तो आलो जी 3 डिजिट्स तो पहला लग गया वा, यानी 7 1 2 एंड देन 0 3 डिजिट्स तो पहला डेसीमल हो जाएगा। आई होप थोनों समझ आया होएगा। इदां दे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपलीफिकेशनस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ां यार, जिन्नियां ज़्यादा तुसी करोगे उन्ने ही सवाल तुसी अच्छे लेवल के कर सकते हो। ठीक है चलो हुण आपां फटाफट एक कंपीटीशन रखते हैं तुहाडे लई भी किहड़े-किहड़े स्टूडेंट समझ रहे ने। 2.31 इंटू 2.31 और ये हो गया 2.31 माइनस हो गया 1.69 इंटू 1.69 अपॉन अपने कोले की हो गए ने अपॉन हो गया 2.31 इंटू 2.31 माइनस हो गया 1.69 और 1.69। दसो जी आंसर कितना है। क्विक यानी जल्दी आंसर होना चाहिए। थोनों पता है कि इत्थे साडे कोले ए स्केयर और इत्थे साडे कोले बी स्केयर बनता है और ऊपर साडे कोले की बन गया वा ए क्यूब, नीचे की बन गया बी क्यूब। ठीक है जी हुण सवाल किद्दां करोगे। थोनों पता है कि ऊपर साडे कोले ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे साडे कोले की है ए स्केयर माइनस बी स्केयर है। तो इहदा आंसर तां तुसीं दसना आ कि सारे दा आंसर इन्ना होएगा। जल्दी करो गाइज, इन्ना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करांगे, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करांगे मेरे प्यारे दोस्तों। यही कंसैप्ट तुसीं समझना है। ये नहीं हुण तुसीं ये करना कि सर जी 2.31 दे विचों आपां ऐ करदे हैं भी कैंसल हो जाएगा। हाँ जी बहुत बार स्टूडेंट्स दिमाग लाएगा भी ऊपर 3 है, एक बारी आप माइनस कर देने 2.31 दे विचों 1.69 माइनस कर देने। लो जी अपना आंसर आ गया। इदा आई डोंट थिंक, मैनू नहीं लगता कि ज़्यादातर तुसीं सवाल कर सकते हो। ये 2 बच गए ने, इत्थे 12 ने विचों 6 बच गया तो फिर तुहाडे कोल 0.6 आंसर होना चाहिए, लेकिन इदा गलत है। हुण तुसीं ये चीज़ देखोगे कि इहदा एक्चुअल फॉर्मूला की हुंदा है ए माइनस बी होएगा, ए बनेगा ए स्केयर बनेगा प्लस तुहाडे कोले की बनेगा इत्थे बी स्केयर लिख सकते हो प्लस ए बी इंज भी लिख सकते हो तुसीं। ठीक है जी हुण ए माइनस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला की हुंदा है। होल स्केयर का फॉर्मूला हुंदा है कि ए माइनस बी और इंटू की हुंदा है ए प्लस बी। ठीक है जी एक माइनस करोगे एक प्लस करोगे। थोनों पता है यू नो कि बहुत ही यूनिक जा मैथड अगर इंप्लीमेंट करना है तो तुसीं इसका एक सोल्यूशन कर सकते हो। सोल्यूशन की है, हालांकि ये पंजाब गौरमेंट के पीपीएससी एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल वापस तो मैं लिखांगा फॉर्मूला कि ए माइनस बी, ए हो गया ए स्केयर प्लस ए बी और प्लस बी स्केयर अपॉन अपने कोले की है, अपॉन अपने कोले ए माइनस बी और इंटू अपने कोले हो गया ए प्लस बी। क्लियर है जी। देखो इहदा मतलब ये हो गया कि सवाल नूं आपां किद्दां कर सकते हैं। कंडीशन बहुत सिंपल जी है, ए माइनस है तो हो गए कैंसल। हुण प्लस वाले बच गए तो प्लस वाले कोई भी वैल्यू डायरैक्ट नहीं है, इनडायरैक्ट आपां इहदे बराबर करांगे तो आपां कह सकते हैं। देखो बराबर किवें होएगा, क्वेश्चन आपां चेंज कर सकते हैं कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस अपने कोले ए बी और मैं कह सकता हाँ कि अपॉन साडे कोले की आ गया कि ए प्लस बी आ गया। इक्वल आपां लिख सकते हैं कि अगर आप इन्हां नूं कॉमन करिए तो आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्केयर
एंड माइनस अपने को ए बी बच जाएगा। क्लीयर है ना, क्योंकि माइनस क्यों होएगा ਇਹਦਾ तरीका भी दसांगा कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर का फॉर्मूला नोट कर लो। ए स्केयर प्लस बी स्केयर का फॉर्मूला होंदा है कि ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस ए बी होंदा है। ठीक है जी, याद रखोगे हमेशा लिए, बहुत ही सिंपल है। एंड अपॉन दे विच अपने कोले की है कि ए प्लस बी है। हुण ए प्लस बी है तो आप ए प्लस बी कैंसल कर देंगे एक, तो अपने को ए प्लस बी बच जाएगा। ठीक है जी, तो गाइस व्यू तो एक चीज़ कंसैप्ट होर याद रखो कि हुण 231 प्लस 1.69 का अपने को की होल स्केयर है एंड माइनस अपने को 231 इंटू अपने को 1.69। ठीक है जी, और अपॉन अपने को कितना आ ए प्लस बी है तो यदा मतलब 2.31 और प्लस दे विच 1.69। ठीक है जी, इन्हां दा आंसर तुसी कंप्लीट करोगे तो तुहाडा आंसर लगभग 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, क्योंकि 3.31 दे विचों आपां लैस करांगे जो वैल्यू, क्योंकि अपने को एक साइड ते स्केयर है एक साइड ते नॉन स्केयर वैल्यू है। तो इहदा आंसर देखो बहुत ही सिंपल जा क्वेश्चन लगता सीगा और कितना परेशान कितना लेंथी क्वेश्चन है, और यह उही स्टूडेंट्स अटैम्प्ट कर सकते हैं जिन्हां दी प्रैक्टिस अच्छी है। ठीक है जी, चलो हुण आपां एक क्वेश्चन होर करते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ होर ट्रिक्स और बेहतरीन फंडे सिखाने हैं, उन्होंने बारे आपां विस्तार नाल चर्चा करांगे भी किद्दां किद्दां तुसीं कर सकते हो। कुछ होर भी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो जी, एक क्वेश्चन तुहानूं मैं दिना वा, तुसीं सारिਆਂ ने सॉल्व करना, बाकी इस ते आपां डिस्कस करांगे। 999 माइनस 96 का होल स्केयर माइनस 3 इंटू अपने कोले हो जाएगा 999 प्लस 3 इंटू 96 है। दसो इहदा आंसर कितना आएगा? आंसर इहदा होएगा 901 इंटू 903, 901 इंटू 902, साढ़े कोले होएगा 899 इंटू 904। तीजा आंसर है कि 903 इंटू 900, या चौथा आंसर इहदा की है नन है। यह एग्जाम रेलवे एग्जाम 2003 च पूछा गया, सेम क्वेश्चन SSC 2014 च पूछा गया। जसो जी दा आंसर कितना होएगा? तो दोस्तों अज दा सैशन किवें लग्या प्लीज़ मेरे नाल जरूर शेयर करियो। ठीक है, मिलते हैं फिर इस तो खतरनाक ट्रिक्स लैके सैशन नंबर 2 के अंदर, वो करांगे आपां कल। तब तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय। और अनअकैडमी ते मेरे लाइव क्लासेस देखनियां नहीं भुलनियां। ठीक है, शेयर कर दो रज के ताकि सारिਆਂ तक इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली पहुंचे।